Here are the solved questions for exercise 1 from lesson 2, all about a dog, A.G. Gardiner, with clear explanations and translations in Hindi. Exercise 1. Tick the correct answer from the given alternatives. 1. The younger woman carried a little A. Spaniel, B. Bulldog, C. Pekingese dog, D. Spitz. Correct answer C. Pekingese dog. हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद. प्रश्न: छोटी महिला अपने साथ एक छोटा अंडरस्कोर ले जा रही थी. उत्तर सी. पेकिनीज कुत्ता, पेकिनेज डॉग. 2. The younger woman was suffering from A. Stomach pain, B. Back pain, C. Fever, D. Cough. Correct answer D. Cough. हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद. प्रश्न: छोटी महिला किस समस्या से पीड़ित थी? उत्तर डी. खांसी, कॉफ. 3. The bell was pulled by the A. Conductor, B. Driver, C. Younger woman, D. Older woman. Correct answer A. Conductor. हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद. प्रश्न: घंटी किसके द्वारा खींची गई थी? उत्तर A. Conductor, conductor. 4. The number of policemen to whom the woman expressed her anger was A3, B4, C5, D6. Correct answer A3. हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद. प्रश्न: पुलिसकर्मियों की संख्या कितनी थी जिन पर महिला ने अपना गुस्सा जाहिर किया? उत्तर A. 3, 3, 5. The problem the bus faced was with the A. Tire, B. Engine, C. Brake, D. Horn. Correct answer B. Engine. हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद. प्रश्न: बस को किस चीज में खराबी की समस्या का सामना करना पड़ा? उत्तर B. Engine, engine. Exercise 2. Instruction: Answer the following questions within 15 words. Question 1. English: How many people got into the bus with the younger woman? हिंदी: छोटी महिला कम उम्र की महिला के साथ बस में कितने लोग चढ़े? English answer: 2 people, a woman and a man got into the bus with the younger woman. हिंदी आंसर: छोटी महिला के साथ 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष बस में चढ़े. Question 2. English: What was the conductor's order to the younger woman? हिंदी: कंडक्टर का छोटी महिला के लिए क्या आदेश था? English answer: The conductor ordered the younger woman to take the dog out of the bus. हिंदी आंसर: कंडक्टर ने छोटी महिला को कुत्ते को बस से बाहर ले जाने का आदेश दिया. Question 3. English: Why did the conductor stand triumphant? हिंदी: कंडक्टर विजयी भाव से क्यों खड़ा रहा? English answer: The conductor stood triumphant because he successfully forced the woman to go upstairs with her dog. हिंदी आंसर: कंडक्टर विजयी भाव से इसलिए खड़ा रहा क्योंकि उसने महिला को कुत्ते के साथ ऊपर जाने पर मजबूर कर दिया. Question 4. English: What is that rule which cannot be broken without danger to life and limb? हिंदी: वो कौन सा नियम है जिसे जानमाल के खतरे के बिना नहीं तोड़ा जा सकता? English answer: The rule of the road cannot be broken without danger to life and limb. हिंदी आंसर: सड़क का नियम, रूल ऑफ द रोड, ऐसा नियम है जिसे जानमाल के खतरे के बिना नहीं तोड़ा जा सकता. Exercise 3. Answer the following questions within 25 words. Question 1. English: When did the author feel that trouble was coming up? हिंदी मीनिंग: लेखक को कब महसूस हुआ कि मुसीबत आने वाली है? Answer English: The author felt trouble was coming up when the bus conductor's eye rested on the small beady-eyed Pekingese dog carried by the younger woman. उत्तर हिंदी: लेखक को मुसीबत आने का एहसास तब हुआ जब बस कंडक्टर की नजर उस छोटी महिला के पास मौजूद छोटे और चमकदार आंखों वाले पैकिनीज कुत्ते पर पड़ी. Question 2. English: Mention 2 demands made by the passengers when the bus stopped. हिंदी मीनिंग: जब बस रुकी तो यात्रियों द्वारा की गई 2 मांगे कौन सी थीं? Answer English: When the bus stopped, the passengers demanded that their fares be refunded and urged to report the conductor or call the police. उत्तर हिंदी:
जब बस रुकी तो यात्रियों ने अपना किराया वापस मांगा और कंडक्टर की शिकायत दर्ज कराने या पुलिस को बुलाने की मांग की। Question 3. English. How are rules of guidance to be observed? हिंदी मीनिंग, मार्गदर्शन के नियमों का पालन किस प्रकार किया जाना चाहिए? Answer. English. Rules of guidance are meant to be observed in spirit, not just in letter, using common sense for the comfort of the passengers. उत्तर. हिंदी, मार्गदर्शन के नियमों का पालन केवल शब्दों में ही नहीं, बल्कि यात्रियों की सुविधा और समझदारी, कॉमन सेंस के साथ उनके सही भावना को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। दिस क्लास 9 ग्रामर इन यूज, वॉइस, वाच्य। The given sentences illustrate active voice set 1 and passive voice set 2. Active voice, the subject performs the action. कर्ता स्वयं कार्य करता है। Passive voice, the subject receives the action. कर्म पर कार्य का प्रभाव पड़ता है। Set 1, active voice और Set 2, passive voice, sentence analysis. A. Set 1 A. You have kept the rule. हिंदी ट्रांसलेशन, तुमने नियम का पालन किया है। Tense, present perfect tense. Set 2 A. The rule has been kept by you. हिंदी ट्रांसलेशन, नियम का पालन तुम्हारे द्वारा किया गया है। B. Set 1B. The conductor had pulled the bell. हिंदी ट्रांसलेशन, कंडक्टर घंटी बजा खींच चुका था। Tense, past perfect tense. Set 2B. The bell had been pulled by the conductor. हिंदी ट्रांसलेशन, घंटी कंडक्टर के द्वारा बजाई गई थी। C. Set 1C. The lady will carry a dog. हिंदी ट्रांसलेशन, महिला एक कुत्ते को ले जाएगी। Tense, simple future tense. Set 2C. A dog will be carried by the lady. हिंदी ट्रांसलेशन, एक कुत्ता महिला के द्वारा ले जाया जाएगा। D. Set 1D. The conductor will have returned the fare. हिंदी ट्रांसलेशन, कंडक्टर किराया लौटा चुका होगा। Tense, future perfect tense. Set 2D. The fare will have been returned by the conductor. हिंदी ट्रांसलेशन, किराया कंडक्टर के द्वारा लौटा दिया गया होगा। Key concepts, मुख्य नियम। 1. In the first set of sentences, the form of the verb shows that the person denoted by the subject does something. वाक्यों के पहले समूह में क्रिया का रूप यह दर्शाता है कि कर्ता, सब्जेक्ट, खुद कोई कार्य करता है। इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। 2. In the second set of sentences, the form of the verb shows that something is done to the subject. वाक्यों के दूसरे समूह में क्रिया का रूप यह दर्शाता है कि कर्ता पर कोई कार्य किया गया है। इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। Exercise 4 solution. Question. In the following sentences, underline the verb forms which show that the person denoted by the subject does something. Active voice. Circle the verb forms which show that something is done to the subject. Passive voice. A. She has sung a song. Action, verb, sung, underlined. English explanation. Here, the subject, she, performs the action of singing. This is an active voice. Hindi translation और explanation. अनुवाद, translation. उसने एक गाना गाया है। स्पष्टीकरण, explanation. यहाँ कर्ता she खुद गाना गाने का काम कर रही है, इसलिए क्रिया का रूप active voice में है। B. A song has been sung by her. Action, verb, sung, circled. English explanation. Here, something, a song, is done to the subject by her. This is in passive voice. Hindi translation और explanation. अनुवाद, translation. उसके द्वारा एक गाना गाया गया है। स्पष्टीकरण, explanation. यहाँ कर्ता, ए सॉन्ग पर क्रिया का असर हो रहा है, यानी उसके द्वारा गाना गाया जा रहा है, इसलिए यह passive voice में है। C. He will draw a picture. Action, verb, draw, underlined. English explanation. The subject, he, is the doer of the action, drawing. This is an active voice. Hindi translation और explanation. अनुवाद, translation. वो एक चित्र बनाएगा। स्पष्टीकरण, explanation. यहाँ कर्ता खुद चित्र बनाने का काम करेगा, इसलिए क्रिया का रूप active voice में है। D. A picture will be drawn by him. Action, verb, drawn, circled. English explanation. The action, drawing, is being done to the subject, a picture, by him. This is in passive voice.
हिंदी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन। अनुवाद ट्रांसलेशन, उसके द्वारा एक चित्र बनाया जाएगा। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन, यहाँ कर्ता ए पिक्चर पर क्रिया की जा रही है, इसलिए यह पैसिव वॉइस में है। क्विक ग्रामर टिप, व्याकरण नियम। एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट डज द एक्शन, राइट एरो अंडरलाइन वर्ब, जब कर्ता खुद काम करता है। पैसिव वॉइस, एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट, राइट एरो सर्कल वर्ब, जब कर्ता पर काम किया जाता है। क्लास 9 इंग्लिश लेसन 2 एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज 5, इंस्ट्रक्शन, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए क्वेश्चन, नीला हैज बॉट अ बुक। आंसर, a book has been bought by नीला। हिंदी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन, नीला ने एक किताब खरीदी है। आंसर, एक किताब नीला द्वारा खरीदी गई है। बी क्वेश्चन, they will have seen the cricket match. Answer, the cricket match will have been seen by them. हिंदी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन, वे क्रिकेट मैच देख चुके होंगे। आंसर, क्रिकेट मैच उनके द्वारा देखा जा चुका होगा। सी क्वेश्चन, भोला had seen a tiger. Answer, a tiger had been seen by भोला। हिंदी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन, भोला ने एक बाघ देखा था। आंसर, एक बाघ भोला द्वारा देखा गया था। डी क्वेश्चन, द नर्स विल अटेंड द पेशेंट। आंसर, द पेशेंट विल बी अटेंडेड बाय द नर्स। हिंदी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन, नर्स मरीज की देखभाल करेगी। आंसर, मरीज की देखभाल नर्स द्वारा की जाएगी। एक्सरसाइज 6, इंस्ट्रक्शन, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए क्वेश्चन, डू द सम। आंसर, let the sum be done, or you are requested, ordered to do the sum. हिंदी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन, सवाल, हिसाब हल करो। आंसर, सवाल हल किया जाए। बी क्वेश्चन, the poem was written by her. Answer, she wrote the poem. हिंदी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन, कविता उसके द्वारा लिखी गई थी। आंसर, उसने कविता लिखी। सी क्वेश्चन, open the door. Answer, let the door be opened, or you are ordered to open the door. हिंदी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन, दरवाजा खोलो। आंसर, दरवाजा खोला जाए। डी क्वेश्चन, the man is known to me. Answer, I know the man. हिंदी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन, वो आदमी मेरे द्वारा जाना जाता है। वो आदमी मुझे ज्ञात है। आंसर, मैं उस आदमी को जानता हूं। एक्सरसाइज 7, Instructions, change the voice of the following sentences. A. They agreed to my plan. Answer, my plan was agreed to by them. हिंदी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन, वे मेरी योजना पर सहमत हुए। आंसर, मेरी योजना पर उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। B. My brother lost my favorite pen. Answer, my favorite pen was lost by my brother. हिंदी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन, मेरे भाई ने मेरी पसंदीदा कलम खो दी। आंसर, मेरी पसंदीदा कलम मेरे भाई द्वारा खो दी गई थी। सी द मैन इज राइटिंग अ लेटर। आंसर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय द मैन। हिंदी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन, आदमी एक पत्र लिख रहा है। आंसर, आदमी द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। डी तितली इज लुकिंग फॉर हर वॉच। आंसर, हर वॉच इज बीइंग लुक्ड फॉर बाय तितली। हिंदी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन, तितली अपनी घड़ी ढूंढ रही है। आंसर, तितली द्वारा उसकी घड़ी ढूंढी जा रही है। एक्सरसाइज 8, इंस्ट्रक्शंस, टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। ए. इट रेन्स हैज बीन रेनिंग, अब इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। करेक्ट ऑप्शन, हैज बीन रेनिंग। कंप्लीट सेंटेंस, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हिंदी ट्रांसलेशन। सुबह से बारिश हो रही है। Note, since denotes an action started in the past and continuing into the present, so present perfect continuous tense is used. B. Last Sunday, I went had been going ago to the zoo. Correct option, went. Complete sentence, last Sunday I went to the zoo. हिंदी ट्रांसलेशन। पिछले रविवार मैं चिड़ियाघर गया था। Note, last Sunday indicates a completed action in the past, so simple past tense is used. C. I will be born was born am in class X next year. Correct option,
will be. Complete sentence, I will be in class X next year. Hindi translation, मैं अगले साल कक्षा 10 में रहूंगी. Note, next year denotes a future state, so simple future tense is used. D. Rina, have reached, by had reached, by has reached, home just now. Correct option, has reached. Complete sentence, Rina has reached home just now. Hindi translation, Rina abhi abhi ghar पहुंची है. Note, just now indicates a recently completed action with present relevance, so present perfect tense with has, for singular subject Rina is used. Composition, process of washing dirty clothes. 1. Instructions or flow chart, निर्देश एवं flow chart. Instruction, read the instruction given below and also the paragraph that follows. Hindi translation, नीचे दिए गए निर्देशों और उसके बाद दिए गए गद्यांश को पढ़ें. Task, use the following flowchart and write a paragraph on the process of washing dirty clothes. Hindi translation, निम्नलिखित फ्लो चार्ट का उपयोग करके गंदे कपड़े धोने की प्रक्रिया पर एक गद्यांश पैराग्राफ लिखें. फ्लो चार्ट ब्रेकडाउन, फ्लो चार्ट के बिंदु. वाटर टेकन इन बकेट. हिंदी, बाल्टी में पानी लिया जाता है. डिटर्जेंट पाउडर मिक्स्ड. हिंदी, डिटर्जेंट पाउडर मिलाया जाता है. डर्टी क्लोथ्स डिप्ड फॉर 30 मिनट्स. हिंदी, गंदे कपड़ों को 30 मिनट के लिए डुबोकर रखा जाता है. स्क्रब्ड. हिंदी, रगड़कर साफ किया जाता है. वॉश्ड इन फ्रेश वाटर. हिंदी, साफ ताजे पानी से धोया जाता है. रिंस्ड एंड ड्राइड. हिंदी, निचौड़ा खंगाला जाता है और सुखाया जाता है. प्रेस्ड. हिंदी, प्रेस इस्त्री किया जाता है. रेडी टू यूज अगेन. हिंदी, फिर से इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है. पैराग्राफ ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन. गद्यांश का अनुवाद. टाइटल, प्रोसेस ऑफ वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स. हिंदी टाइटल, गंदे कपड़े धोने की प्रक्रिया. 1. सेंटेंस, डर्टी क्लोथ्स नीड टू बी वॉश्ड एंड मेड रेडी फॉर वेयर. हिंदी, गंदे कपड़ों को धोने और उन्हें पहनने योग्य बनाने की आवश्यकता होती है. 2. सेंटेंस, एट फर्स्ट वाटर इज टेकन इन अ बकेट. हिंदी, सबसे पहले एक बाल्टी में पानी लिया जाता है. 3. सेंटेंस, नेक्स्ट डिटर्जेंट पाउडर इज मिक्स्ड इनटू द वाटर. हिंदी, इसके बाद पानी में डिटर्जेंट पाउडर मिलाया जाता है. 4. सेंटेंस, देन द डर्टी क्लोथ्स आर डिप्ड इनटू द मिक्सचर एंड केप्ट फॉर 30 मिनट्स. हिंदी, फिर गंदे कपड़ों को इस घोल में डुबो दिया जाता है और 30 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है. 5. सेंटेंस, आफ्टर दैट द क्लोथ्स आर स्क्रब्ड थॉरली वन बाय वन. हिंदी, इसके बाद कपड़ों को एक एक करके अच्छी तरह से मलाश रगड़ा जाता है. 6. सेंटेंस, लेटर द क्लोथ्स आर वॉश्ड इन फ्रेश वाटर. हिंदी, बाद में कपड़ों को साफ ताजे पानी से धोया जाता है. 7. सेंटेंस, देन दे आर रिंस्ड एंड ड्राइड वेल. हिंदी, फिर उन्हें अच्छी तरह खंगाला निचोड़ा जाता है और सुखाया जाता है. 8. सेंटेंस, नाउ दे आर फोल्डेड एंड प्रेस्ड. हिंदी, अब उन्हें मोड़ा तह बनाया जाता है और इस्त्री प्रेस किया जाता है. 9. सेंटेंस, फाइनली द क्लोथ्स आर रेडी टू बी यूज्ड अगेन. हिंदी, अंत में कपड़े फिर से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं. यहां 5वीं तस्वीर में दिखाए गए मुख्य बिंदुओं का हिंदी अनुवाद और विस्तृत स्पष्टीकरण दिया गया है. The above paragraph has the following features. उपरोक्त अनुच्छेद में निम्नलिखित विशेषताएं हैं. 1. is suitable title. हिंदी अनुवाद, एक उपयुक्त शीर्षक. अर्थ, किसी भी प्रक्रिया प्रोसेस राइटिंग को लिखते समय सबसे ऊपर एक सही और स्पष्ट शीर्षक देना आवश्यक होता है. 2. an introductory sentence. हिंदी अनुवाद, एक परिचयात्मक वाक्य, शुरुआती वाक्य. अर्थ, अनुच्छेद की शुरुआत में एक ऐसा वाक्य होना चाहिए जो ये बताए कि यहाँ किस प्रक्रिया या विषय के बारे में बात की जा रही है. 3. पैसिव वॉइस इज यूज्ड. ईज बी वॉश्ड. हिंदी अनुवाद, पैसिव वॉइस का उपयोग किया जाता है, जैसे बी वॉश्ड. अर्थ, प्रक्रिया लेखन में कर्मवाच्य पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है, जहां कर्ता एक्शन करने वाले से ज्यादा काम एक्शन पर ध्यान दिया जाता है. 4. यूज ऑफ लिंकर्स, e.g. at first, then, next, after that, later, now, finally, etc. हिंदी अनुवाद, लिंकर्स, संयोजक शब्दों का प्रयोग, जैसे पहले, फिर, आगे, उसके बाद, बाद में, अब, अंत में आदि.
अर्थ: घटनाओं या चरणों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ने के लिए समय दर्शाने वाले शब्दों का उपयोग किया जाता है। 5. द स्टेजेस ऑफ द फ्लो चार्ट आर केयरफुली फॉलोड। हिंदी अनुवाद: फ्लो चार्ट के चरणों का ध्यानपूर्वक पालन किया जाता है। अर्थ: दिए गए फ्लो चार्ट या बिंदुओं के अनुसार ही क्रमबद्ध तरीके से प्रक्रिया लिखी जाती है। 6. ए कंक्लूडिंग सेंटेंस। हिंदी अनुवाद: एक निष्कर्ष वाक्य, अंतिम वाक्य। अर्थ: अनुच्छेद के अंत में एक समाप्त करने वाला वाक्य होता है जो पूरी प्रक्रिया को पूरा करता है। प्रोसेस राइटिंग रिक्वायर्स द फीचर्स गिवन अबव। प्रक्रिया लेखन प्रोसेस राइटिंग के लिए ऊपर दी गई विशेषताओं की आवश्यकता होती है। Exercise 9. Question. Use the following flow chart to write a paragraph within 100 words on how to prepare orange juice. Orange is bought from the market, sorted, rotten ones, removed, cleaned, peeled, put in juicer, juice extracted, sugar and preservatives added, poured in bottles, sealed, ready to be sold. Title: Preparation of orange juice, संतरे का रस तैयार करना. English paragraph. Orange juice is a delicious and healthy drink that is prepared through a simple process. At first, fresh oranges are bought from the market. Then, the oranges are sorted, and any rotten ones are removed carefully. After that, the good oranges are washed thoroughly with clean water. Next, the oranges are peeled and put into a juicer to extract the juice. Sugar and preservatives are then added to enhance the taste and preserve it for a longer duration. Afterwards, the juice is poured into clean bottles. Finally, the bottles are sealed properly, and the orange juice is ready to be sold in the market. Hindi translation. हिंदी अनुवाद. संतरे का रस एक स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक पेय है जिसे एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है। सबसे पहले बाजार से ताजे संतरे खरीदे जाते हैं, फिर संतरों की छंटाई की जाती है और सड़े हुए संतरों को ध्यानपूर्वक हटा दिया जाता है। इसके बाद अच्छे संतरों को साफ पानी से अच्छी तरह धोया जाता है। इसके बाद संतरों को छीलकर जूसर में डाला जाता है ताकि रस निकाला जा सके। फिर स्वाद बढ़ाने और इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें चीनी और परिरक्षक प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। तत्पश्चात रस को साफ बोतलों में भरा जाता है। अंत में बोतलों को ठीक से सील कर दिया जाता है और संतरे का रस बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। Exercise 10. Question. Write a paragraph within 100 words on how you plan to take care of street dogs. Use the following hints. Cruel actions towards street dogs, necessity of looking after them, ways of taking care of the dogs, conclusion. Paragraph. Caring for street dogs. Street dogs are often victims of human cruelty and neglect. Many people beat them, throw stones at them, or drive them away without any reason. However, as living creatures, they feel pain and deserve love and shelter. Therefore, it is our moral duty to look after these helpless animals. To care for them, I plan to provide them with leftover food and fresh water daily. I will also try to build basic temporary shelters for them during harsh weather like heavy rain or winter cold. In case of injury or sickness, I will seek help from local animal welfare groups for their medical treatment. Showing compassion to street dogs makes our society more humane and kind. Sentence by sentence English to Hindi translation. 1. English. Street dogs are often victims of human cruelty and neglect. हिंदी. आवारा कुत्ते अक्सर इंसान की क्रूरता और उपेक्षा के शिकार होते हैं। 2. English. Many people beat them, throw stones at them, or drive them away without any reason. हिंदी. कई लोग उन्हें बिना किसी कारण पीटते हैं, उन पर पत्थर फेंकते हैं या उन्हें भगा देते हैं। 3. English. However, as living creatures, they feel pain and deserve love and shelter. हिंदी. हालांकि जीवित जीव होने के नाते वे भी दर्द महसूस करते हैं और प्यार और आश्रय के हकदार हैं। 4. English. Therefore, it is our moral duty to look after these helpless animals. हिंदी. इसलिए इन लाचार जानवरों की देखभाल करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। 5. English. To care for them, I plan to provide them with leftover food and fresh water daily. हिंदी. उनकी देखभाल के लिए मेरी योजना उन्हें रोजाना बचा हुआ खाना और ताज़ा पानी देने की है। 6. English. I will also try to build basic temporary shelters for them during harsh weather like heavy rain or winter cold. हिंदी. मैं भारी बारिश या सर्दियों की ठंड जैसे कठोर मौसम के दौरान उनके लिए बुनियादी अस्थायी आश्रय बनाने की भी कोशिश करूंगा। 7. English.
In case of injury or sickness, I will seek help from local animal welfare groups for their medical treatment. हिंदी, चोट लगने या बीमारी की स्थिति में मैं उनके इलाज के लिए स्थानीय पशु कल्याण समूहों से मदद लूंगा. 8. English. Showing compassion to street dogs makes our society more humane and kind. हिंदी, आवारा कुत्तों के प्रति दया दिखाना हमारे समाज को अधिक मानवीय और दयालु बनाता है.